कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। इस वीडियो सीरीज में आज हम डाइंग डिक्लेरेशन डिस्कस करने वाले हैं। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में डाइंग डिक्लेरेशन को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस इन दिस वीडियो। Hello friends, welcome to iExamB. Subscribe to our channel to stay tuned with such conceptual videos and other exam related information. Don't forget to click the bell icon. You can reach out to us on this number, you can write to us on this email ID, or you can visit our website to check out our courses. Now starting with the topic, what is dying declaration? Dying का मतलब हो गया someone is about to die and declaration is some statement which that person has said. So dying declaration is a statement which a person has said when he is on his deathbed. जब वो मरने वाला है तब उसने कुछ statements दी हों. This is incorporated in section number 32 subsection 1 of Indian Evidence Act. It is statement of a person who has died. Statement was given when he was about to die. And this is an exception to hearsay evidence. Hearsay evidence का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें. So in evidence we clearly say hearsay evidence is not admissible. सुनी सुनाई बातें एडमिट नहीं की जा सकती. अगर किसी ने क्राइम होते देखा है, सुना है या फिर कुछ भी समझा है, जिस पर्सन ने वो ऑब्जर्व किया है वो आकर एविडेंस दे. अगर ए ने कोई क्राइम विटनेस किया है तो ए आई विटनेस हुआ, ए आकर एविडेंस दे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए ने बी को बताया कि क्या हुआ था और फिर बी आकर एविडेंस दे रहा है. दिस एविडेंस बाय बी इज हेयरसे एविडेंस which is not admissible. But dying declaration, even though it is hearsay, it is still admissible. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उस स्टेटमेंट को एडमिट करना एक नेसेसिटी हो चुका है. उस पर्सन की डेथ हो चुकी है जिसने वो स्टेटमेंट दी है और अगर उस स्टेटमेंट को यूज नहीं किया गया तो इनजस्टिस हो सकती है. In such circumstances, dying declaration becomes very important. And dying declaration should explain the circumstances of his death or cause of his death. अब हमने बोल दिया dying declaration admit हो जाएगी, it is an exception to hearsay evidence, but कुछ grounds होते हैं. The grounds of admission of dying declaration include first, the person जिसकी dying declaration है, the one who has died, he must be the principal eyewitness in a particular scenario, और इस तरीके से कि उसकी स्टेटमेंट को अगर एक्सक्लूड कर दिया गया then it may defeat the ends of justice. अब उस पर्सन की तो डेथ हो चुकी है, उसे तो नहीं बुला सकते स्टेटमेंट देने के लिए. Now if he has given some statement to another person, और जरूरी नहीं है वो पर्सन मैजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो सकता है. अगर मरते वक्त उस इंसान ने किसी भी इंसान को कोई स्टेटमेंट दी है which is because he was the principal eyewitness in a particular case, in a particular situation, then his statements can be included as dying declaration. Second reason जिसकी वजह से dying declaration को admit किया जाता है, sense of impending death. ऐसा माना जाता है कि कोई person जब मरने वाला है तो वो झूठ बोलकर नहीं मरेगा. A person will not go to meet his maker, will not go to meet God with a lie in his mouth. Therefore, the sense of impending death gives a sanction equal to the obligation of oath. जब हम कहते हैं कि किसी ने ओथ ली है तो वो सच ही बोलेगा, ये हम प्रिजम्पशन लेकर चलते हैं. इसी तरीके से वी आर प्रिज्यूमिंग दैट द सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ आल्सो मेक्स अ पर्सन स्पीक द ट्रूथ. अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. हमने ये तो देख लिया डाइंग डिक्लेरेशन को हम एडमिट कर लेंगे, बट व्हाट काइंड ऑफ अ एविडेंस इज दिस? Is this a strong evidence or a weak evidence? Now dying declaration may or may not form the sole basis of conviction. अकेले dying declaration के basis पे convict किया भी जा सकता है और नहीं भी. It varies from case to case depending upon the circumstances, the other evidence in the case. It requires corroboration or not. ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको corroboration हमेशा चाहिए. अगर डिक्लेरेशन कोहेरेंट है, कंसिस्टेंट है और ट्रस्टवर्दी है, अगर डिक्लेरेशन बाकी सभी सर्कमस्टांसेस के साथ मैच हो रही है, बाकी सभी सर्कमस्टांसेस के साथ कंसिस्टेंट है, देन देयर इज नो नीड फॉर corroboration by independent evidence. Also, if declaration appears to be voluntary,
then it does not require corroboration. इन circumstances में dying declaration को corroboration की जरूरत नहीं है। तो हमने देख लिया कि जरूरी नहीं है कि dying declaration को corroborate किया जाए। हमने ये भी देख लिया कि dying declaration may form the sole basis of conviction। तो अब हम वो ग्राउंड्स देखते हैं, वो सिचुएशन देखते हैं जिसकी वजह से डाइंग डिक्लेरेशन को स्ट्रॉन्ग एविडेंशियरी वैल्यू दी जा सकती है, उसके बेसिस पे किसी भी पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है। सर्कमस्टांसेस विच लेंड स्ट्रेंथ टू द डाइंग डिक्लेरेशन। फर्स्ट वन इज इट इज रिकॉर्डेड बाय कंपीटेंट मैजिस्ट्रेट। जैसे कि एक कन्फेशन होता है, जुडिशियल कन्फेशन, उसको मैजिस्ट्रेट अगर रिकॉर्ड करे तो उसकी बहुत हाई एविडेंशियरी वैल्यू हो जाती है। सिमिलरली जब डाइंग डिक्लेरेशन को मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है तो उसकी भी हाई एविडेंशियरी वैल्यू हो जाती है। ऑल्सो एग्जैक्ट वर्ड्स आर स्पोकन विच वर स्पोकन बाय द डाइंग पर्सन इन द डिक्लेरेशन। There is also less time delay between the situation, between the happening of that event and the declaration given by the dying person, ताकि ऐसा ना हो कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसकी वजह से कोई मरने वाले इंसान की जजमेंट को क्लाउड कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। There was no opportunity of it being colored by impressions received from others. Also, deceased had ample opportunity of observation. ऐसा नहीं हो वो 1 सेकंड के लिए वहां से गुजरा और उसने देखा एक क्राइम हुआ था और वो उस 1 सेकंड में ही एक्यूज को पहचान ले। नहीं, ऐसा नहीं, तब डाइंग डिक्लेरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं मानी जाएगी। डिसीज के पास एम्पल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन की। जो भी उसने ऑब्जर्व किया वो सफिशिएंटली प्रॉपरली ऑब्जर्व किया हो। अगर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रही है तो माना जा सकता है कि जो वो कह रहे हैं वो सच हो सकता है। ऑल्सो इंसिडेंट वुड हैव हैपेंड इन सफिशिएंटली लाइटेड प्लेस। अगर डाइंग डिक्लेरेशन में एक पर्सन ने बोला कि वो एक कमरे में गया, उसने ए को बी को मारते हुए देखा, पर कमरे में लाइट ऑन नहीं थी, इट वॉज अ वेरी डार्क प्लेस, तो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंशियरी वैल्यू नहीं दी जा सकती, क्योंकि अंधेरे में उसने कैसे पहचान लिया ए ने ही मारा है। इट कुड हैव बीन समवन एल्स हु वाज रिजेंबलिंग ए। इसलिए द इंसिडेंट शुड हैव हैपेंड इन सफिशिएंटली लाइटेड प्लेस। ऑल्सो अगर डिसीज ने एक से ज्यादा स्टेटमेंट दी है, एक से ज्यादा लोगों को स्टेटमेंट दी है, तो सभी स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं उसने एक पर्सन को कुछ बता दिया, दूसरे पर्सन को कुछ बता दिया about the occurrence of that particular event, about the identity of the attackers, तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि वो पर्सन खुद ही कंफ्यूज है, तो उसकी बात को, उसके डिक्लेरेशन को कैसे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मान लिया जाए। इसलिए अगर डिसीज एक से ज्यादा स्टेटमेंट दे रहा है, ऑल शुड बी कंसिस्टेंट विद ईच अदर एंड ऑल्सो कंसिस्टेंट विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द occurrence of the particular incident. In this slide, we are going to talk about a legal maxim, Nemo Moriturus Presumpter Mentiri. ये मैक्सिम डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। इसका मतलब है नो वन एट द पॉइंट ऑफ डेथ इज प्रिज्यूम्ड टू लाई। ये प्रिजम्पशन है कि जो पर्सन मरने वाला है ही विल नॉट लाई। देयरफॉर दिस मैक्सिम रिप्रेजेंट्स डाइंग डिक्लेरेशन। A man who is on deathbed would not tell a lie to falsely implicate innocent person. Section 32 of Evidence Act talks about dying declaration and एक बहुत अच्छा, बहुत फेमस केस लॉ है विद रिस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशन, जिसमें सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू हिज डेथ को बहुत ही इलोक्वेंट इंटरप्रिटेशन दिया गया था, विच वॉज पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। इस केस को जरूर पढ़ना। अगर आपको कोई भी डाउट है, वी विल डिस्कस दैट। Just you have to mention that in the comment and I'll take that case law and I'll discuss this in detail कि कैसे उस केस में डाइंग डिक्लेरेशन और कन्फेशन, इन दोनों टर्म्स को बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन दिया गया था। In the description you will also find a link. If you click on this link, it will take you to concepts पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे पेज। There you will find a quiz which is related to this concept. I'll advise you to go and attempt that quiz. There are only 5 questions, but exam के level के questions होते हैं। आपको 2 मिनट लगेंगे। It will give you a very good revision and also an understanding कि आपको concept समझ भी आ गया है या नहीं। With a crisp and concise content, iExamB helps you prepare 50% faster. For any guidance or queries, you can call us on this number or you can also write to us here. Thank you.